Rahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online, and I am Dr. Asad, and with my specialty in the subject of biology, we will be discussing a very important life-threatening viral infection that is caused by retrovirus known as the AIDS, that is the abbreviation of acquired immune deficiency syndrome. So the different components regarding AIDS that we will be covering are its definition, the predisposing factors, pathogenesis, basically disease का mechanism क्या है, and then finally we will discuss its management. End of this lecture, the grade 11 students, they should be able to know what AIDS is, and they should also be able to understand the various predisposing factors that can lead to the exposure of an individual to this virus. And then we will also discuss how HIV spreads as an infection within the cells, and finally we will come to that how we can manage such a viral infection and what sort of management techniques have yet been discovered to treat or prevent such a viral infection. Starting off with the definition of AIDS, that is a human immune system disease caused by the HIV virus known as the human immunodeficiency virus. तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि this viral infection particularly affects the immune system, और obviously आपको पता है कि जब एक दफ़ा किसी भी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, तो then our body is susceptible to any kind of a disease that could be a bacterial or a viral infection or due to any other microbe. Before we go into the details of the predisposing factors and the symptoms of this viral infection, we will discuss how this disease was first identified. So the first case of AIDS, it was reported in the 20th century within the males who were involved in homosexual activities. तो यहाँ से ये डिज़ीज़ स्टार्ट हुई, और उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर दूसरे जेंडर्स में भी, फीमेल्स में भी जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो रिपोर्ट की गई. बट यू कैन सी हाउ दिस सॉर्ट ऑफ डिजीज़ और द वायरल इन्फेक्शन इट गॉट इनिशिएटेड फ्रॉम समथिंग दैट वाज unnatural in process. Obviously it's sort of a psychological disease in which same genders they are performing such activities. So उसका जो impact था वो किसके ऊपर था? on the T lymphocytes. So basically जो viral infection है वो ट्रांसफ़र होने के बाद स्पेसिफिकली जो हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं, दैट आर द वाइट ब्लड सेल्स, उसमें भी जो स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं टी लिम्फोसाइट्स, उनको अफेक्ट कर रहे थे. दैट आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस व्हेन एवर अ माइक्रोबियल एक्टिविटी और एनी फॉरेन एजेंट इट एंटर्स इन आवर बॉडी. ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो आगे जाके जो हम ब्लड वाला पोर्शन भी कवर करेंगे उसमें भी हम ये देखेंगे कि ल्यूकोसाइट्स जो हैं दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस व्हेन एवर देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी और माइक्रोबियल इन्वेजन. उसमें भी जो फर्दर टाइप्स होती हैं उसमें जो टी लिम्फोसाइट्स हैं दे आर बेसिकली इफेक्टेड बाय दिस वायरस. So you can see the structure of this virus over here. So it's an enveloped RNA virus. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है प्रेजेंट है within this capsid over here. और उसके आप इस अलावा RNA molecules के साथ देख सकते हैं the presence of the reverse transcriptase molecules over here. अब इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल्स का फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में जब हम रेट्रोवायरस को कवर कर रहे थे. दिस बेसिक डायग्राम इज़ बेसिकली ऑफ द रेट्रोवायरस दैट कंसिस्ट ऑफ दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. इसका मकसद हमने पढ़ा था कि जब एक दफ़ा ये वायरस एंटर हो जाता है इनटू द होस्ट सेल तो ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है. तो दैट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम, दैट इज़ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. उसके अलावा ये आउटर एनवेलप है, उसके ऊपर आप ये बड लाइक स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं दैट आर बेसिकली द रिसेप्टर प्रोटीन्स थ्रू विच दिस वायरस विल अटैच टू द
टी लिम्फोसाइट सरफेस रिसेप्टर्स, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट्स के सरफेस के ऊपर भी रिसेप्टर्स हैं, उसके अलावा ये प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं। तो सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर क्या होता है कि जो टी लिम्फोसाइट के रिसेप्टर्स हैं वो इन रिसेप्टर्स की अटैचमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड थ्रू दिस अटैचमेंट द RNA genome is then passed into the T lymphocytes. Then we come to the predisposing factors जिनको हम avoid करके इस viral infection को avoid कर सकते हैं. That means multiple sexual contacts with multiple partners, ख़ास तौर पे अगर homosexuals हैं तो उनमें भी ये डिज़ीज़ पाई जाएगी. इसके अलावा जो अनकंट्रोल्ड या अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटी है उससे भी जो एड्स है उसके ट्रांसफ़र होने के ज़्यादातर खदशात होते हैं. दैन वी हैव ब्रेस्ट फीडिंग. ऑब्वियसली इफ़ अ मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस वायरल इन्फेक्शन तो थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग भी, थ्रू मिल्क जो है ये ट्रांसफ़र हो सकता है इनटू द यंग इंडिविजुअल्स. उसके अलावा यूज्ड सिरिंजेस अगर हम यूज़ कर रहे हैं दोबारा से, ठीक है, रादर दैन कि हम उनको डिस्पोज ऑफ करके नई सिरिंजेस यूज़ करें, तो ऑब्वियसली उसमें भी क्या होगा कि थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी और यूज़ ऑफ सच इन्फेक्टेड सिरिंजेस दिस डिजीज़ और दिस वायरस कैन इन्फेक्ट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर. इन्फेक्शन साइकिल की हम बात करें तो ऑब्वियसली दिस विल बी somewhat similar to how we have gone through the different lytic and lysogenic cycle of the bacteriophage. तो उसी तरह की ये लाइफ साइकिल होगी विद वेरी फ्यू डिफरेंसेस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनिशियल प्रोसेस है दैट इज़ द बाइंडिंग ऑफ द वायरस विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स. बाइंडिंग में क्या होगा, देयर विल बी एसोसिएशन ऑफ द वायरस, यानी कि जो वायरस है वो अपने सेल रिसेप्टर्स के थ्रू एसोसिएशन बनाएगा विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स. उसके बाद जब ये एक दफ़ा अटैचमेंट हो जाती है इस बाइंडिंग के बाद देयर इज़ फ्यूजन ऑफ द वायरस विद द मेम्ब्रेन, और उसके बाद क्या होगा कि फ्यूजन के बाद देयर इज़ गोइंग टू बी अनकॉइलिंग इन विच द आउटर कवरिंग ऑफ HIV फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्यूज़ करेगा. उसके बाद जो वायरल जीनोम है दैट विल एंटर इनटू द टी लिम्फोसाइट्स. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें यहाँ पे तो दिस इज़ हाउ यू कैन सी दिस वायरल जो पूरे का पूरा कैप्सिड है दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अटैच्ड. उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट्स का सरफेस है और वायरस है किस तरह से आपस में पहले फ्यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो कैप्सिड है एज अ होल इट एंटर्स इनटू द टी लिम्फोसाइट. अब ये एक दफ़ा एंटर होने के बाद कहाँ पे जाएगा, इनटू द न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स का जीनोम लोकेटेड है दैट इज़ द DNA मॉलिक्यूल. सो आफ्टर बाइंडिंग फ्यूजन उसके बाद जो अनकॉइलिंग है उसके बाद क्या होगा कि देयर विल बी एक्टिविटी ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है. सो द थर्ड पॉइंट और द थर्ड फेज इज़ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है दैट विल कन्वर्ट द RNA इनटू DNA. उसके बाद जो ये वायरल DNA है उसके बाद सेल के न्यूक्लियस में एंटर हो जाता है. तो ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड ऑफ दिस HIV वायरस, कि किस तरह से ये अपना जो जीनोम है उसको एंटर करवाता है इनटू द सेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस RNA that are the single stranded helical structure, they are first of all converted into the DNA through reverse transcriptase activity. उसके बाद ये जो DNA है it is going to enter the nucleus of the T lymphocyte. उसके बाद यूनिफिकेशन आ जाती है जिसमें क्या होता है कि जब T lymphocyte के DNA के साथ वायरल DNA अटैच होगा तो वो एक मॉडिफाइड क्रोमोसोमल DNA बन जाता है जिसको कि हम उस वक्त प्रो वायरस कहते हैं, ठीक है. तो यूनिफिकेशन इज बेसिकली द वायरल DNA becomes a part of the chromosomal DNA. So in order to understand the infectious cycle of the HIV, we have a diagram over here where you can see how the HIV virus, it first of all attaches to the surface, then it is going to fuse with the membrane of the T lymphocytes over here. उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है वो सेल में एंटर होगा.
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाउ द RNA strands they only consist of these RNA transcriptase enzymes, ठीक है। और फिर ये जो RNA है इट एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द T lymphocytes, जहाँ पे ये जाके जो T lymphocytes का DNA है उसके साथ एसोसिएट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ये एक कॉपी प्रोड्यूस हो रही है ये होती है द प्रोवायरल DNA, ठीक है। प्रोवायरल DNA एक दफ़ा जब बन जाता है तो ये सेल से बाहर आता है एंड दिस इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू एंड वंस अगेन द RNA सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये जो DNA का प्रोवायरल DNA है दैट इज़ नाउ कन्वर्टेड थ्रू ट्रांसक्रिप्शन इनटू RNA स्ट्रैंड। और ये RNA के जो स्ट्रैंड्स हैं ये फिर दोबारा से असेंबल हो जाते हैं इनटू द कैप्सिड and the envelope over here, and then these cells they bud off and now they are ready to infect the other T lymphocytes as well. So obviously unification के बाद आप देख सकते हैं कि there is multiplication जिसमें कि formation of HIV protein in the host cell, ठीक है। कि एक दफ़ा जब obviously ये पूरे का पूरा DNA बन गया है वायरस का by associating itself with the genome of the T lymphocytes, तो अब क्या होगा कि मल्टीपल कॉपीज़ उस DNA की प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद देयर विल बी असेंबली ऑफ द HIV RNA वायरस, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास दोबारा से RNA वायरस बनेगा जो कि उसी तरह से असेंबल हो जाएगा इनटू द कैप्सिड एंड द कैप्सूल एंड देन इट विल मूव आउट ऑफ द सेल टू री इन्फेक्ट द अदर T lymphocytes। तो इस तरह से एक T lymphocytes को इन्फेक्ट करने के बाद जब हमारे पास मल्टीपल इस तरह के HIV वायरस बनेंगे तो वो फिर मल्टीपल आगे से T lymphocytes को अफेक्ट करेंगे। तो जितने ज़्यादा T lymphocytes अफेक्ट होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि इम्यूनिटी जो है वो बॉडी की कॉम्प्रोमाइज़ होती जाएगी एंड आवर बॉडी देन बिकम ससेप्टेबल टू मोर एंड मोर माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। लास्ट इज़ द बडिंग, जिसमें कि क्या होता है कि इमेच्योर HIV जो है इट विल रिलीज द प्रोटीएज टू ब्रेक द लिंकेज बिटवीन द इन्फेक्शियस वायरस एंड द T lymphocyte, जिसके बाद क्या होगा कि जो एक नया वायरस है वो बर्ड ऑफ हो जाता है फ्रॉम द lymphocytes and then it is now ready to infect the other normal cells. Finally we come to the symptoms, जिसमें कि हम देखेंगे कि कौन कौन से symptoms हमें नज़र आ सकते हैं एड्स के केस में in the patients who has been infected by the HIV. We have the weight loss, pneumonia, vascular cancer, inflamed lymph nodes and compromised immunity. तो आप ये देख सकते हैं कि एक ही टाइम के ऊपर पेशेंट किस तरह से डिफरेंट डिजीज़ से जो है वो उनको फेस कर रहा होगा, दैट आर निमोनिया, वेस्कुलर कैंसर, यानी कि हमें जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें देयर इज़ डेवलपमेंट ऑफ कैंसरस सेल्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फ नोड जो कि ऑब्वियसली किसी भी इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहे होते हैं। अभी आगे चल के जब हम ह्यूमन बॉडी की डिटेल के में पढ़ेंगे तो उसमें हम ये भी कवर करेंगे कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज़ देयर सिग्निफिकेंस। सो यू कैन सी द डिफरेंट सिम्टम्स दैट यू ऑब्जर्व इन केस ऑफ पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एड्स। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं किसी भी डिजीज़ की तो सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको प्रिवेंट कर सकें। तो जितने भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हमने पढ़े थे जिसमें कि हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ विद डिफरेंट पार्टनर्स, उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो हमें क्या करना चाहिए कि एक तो अपनी जो ब्लड स्क्रीनिंग है इसको रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। उसके अलावा तमाम जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उससे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए कि जब भी हम कोई मेडिकल से रिलेटेड अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के किसी भी मैकेनिज़्म से हमें गुजरना पड़ता है तो हमें हमेशा सबसे उन प्रोसेस से पहले अपनी जो ब्लड स्क्रीनिंग है और ये मेक श्योर करना चाहिए कि अगर हमारे पे कोई भी सिरिंज यूज़ हो रही है फॉर इंजेक्टिंग एनी वैक्सीन और एनी अदर प्रोसेस, सो अ न्यू सिरिंज शुड बी यूज्ड ऑन एवरी पेशेंट। उसके अलावा एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है तो काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है फ्रॉम
the early 21st century on developing a vaccine for the HIV virus. उसके अलावा अगर किसी भी पेशेंट को ये इन्फेक्शन हो गई है बिकॉज इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, सो दे कैन नाउ गो ऑन टू एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसमें कि ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट एंटीवायरल ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू सप्रेस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द HIV वायरस. सो मल्टीपल टाइम्स ऑब्वियसली स्क्रीनिंग और फिर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पेशेंट को दी जाती है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चेक भी किया जाता है कि व्हाट हाउ द प्रोग्रेस इज़ गोइंग ऑन. तो मेन मकसद क्या होता है कि हमने इस वायरस की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको प्रिवेंट करना है. सो जो मेन हमारे पास फंक्शन होता है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का, वो भी यही है, टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस वायरस इन द blood. So do like our video and share it with other students if you have been able to have a good idea of the impact of retrovirus, what human immunodeficiency virus is, and how life threatening this disease is. And in the comment section, do ask us questions if you have relevant to the topic we have covered in this video. Last but not the least, do not forget to subscribe to our channel and click the bell button so you can receive updated notifications of our new video on regular basis. Thank you very much.